So good morning to all of you students. So in today's lecture we are going to discuss exercise 14.1. In this exercise we will solve the questions related to find the median. In the previous lecture we already discussed that how can we find the mean. Mean we can find from the three methods. First method is direct method. Second one method is mean assumed mean method, and third one is step deviation method. Students, first question already we have solved from two methods. First one is direct method, second one is assumed mean method. So today we are starting from question number 2, and this question we will solve by step deviation method. So this question says that consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. So students, table is given. First, you can make the table with me. Class interval in the form of daily wages, and these daily wages is given in rupees. Okay, so daily wages are 100 to 120, 120 to 140. 140 to 160 and 160 to 180 and last 180 to 200. These are daily wages given. और लास्ट हम जरा टोटल का बनाते हैं ना टोटल. Now after that, what we have to calculate, students? We have to calculate the midpoint of the class interval, which is called class mark. It is represented by xi, class mark. This is represented by xi. And students, you know very well that how can we find the class mark? Class mark is lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit plus upper limit divided by 2. So student, lower limit is 100, upper limit is 120. So students, 100 plus 120 divided by 2. Students, so 100 plus 120 is 220 divided by 2. So cancel 200 0. So it is 110. स्टूडेंट्स क्या है अपने पास क्लास मार्क फर्स्ट 110. अब आप चेक कर लीजिए कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स यहाँ पर. each and every class interval has 20 difference है ना. size of the class interval is 28. So students 20 add कर लीजिए ना. To find the next class mark you have to add 20. 110 plus 20 is 130. 130 plus 20 is 150. 170 and 190. These all are the class mark. Okay students, now the number of workers is given, and number of worker is frequency, that means number of workers, that means fi is what? 12, 14, 8, 6 and 10. Got it students? So these are the number of workers. So students, we have to find their sum, that is sigma summation of fi. हमें sum of all frequencies find out करना होगा students. So calculate कीजिएगा. 2 plus 4 6, 6 plus 8 14, 14 plus 6 20 plus carry 2, 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5. So question में भी given है direct 50 ना. So इस तरीके से आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एक बार क्वेश्चन में ऐसा आया था जिसे यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप देखेंगे 50 वर्कर्स लिखा था, उनका सम भी 50 आया है. लेकिन एक बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि 100% एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर लैंग्वेज लिखा था 100 वर्कर्स या 100% लिखा था, तो सम आ रहा था 110. तो कभी-कभी इस तरीके की मिस्टेक भी क्वेश्चन में आ जाती है स्टूडेंट्स. सो आपको जरूरी नहीं कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट वही आप यहाँ पर समेशन ऑफ कर पाए. आप एक बार टोटल करके चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन के टोटल और इसकी टोटल करेक्ट भी गिवन है कि नहीं स्टूडेंट्स. So this is our fi. Now here we have to apply the step deviation method students. And what is the step deviation method students? Step deviation method is mean x bar is equals to a
plus summation of fi ui upon summation of fi multiplied by h. This is our step deviation method. So in the step deviation method, we have to choose the assumed mean. आपका assumed mean में चुना और you have to check what is the size of class interval. तो student size of class interval हमने check कर लिया था कि कितना था, h की value 20. So you can write here in this question h is equals to 20. h की value 20. क्यों है 20? बेटा size of a में difference check करना है आपको, ये h को indicate करता है, तो h की value 20. Now अब a को calculate करने के लिए मैंने आपको कल बहुत अच्छा method बताया था कि a कहाँ से calculate करना है, आपको कहाँ से assume करना है, केवल xi वाले कॉलम से, है ना, xi वाले कॉलम. और आपको पहले था जनरली हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो मिडिल वाला टर्म होगा उसको अपन चेक करेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे इस xi में देखो 110 130 150 170 100, तो इन सब में मिडिल टर्म क्या है स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म सबसे ये है ना, इसके ऊपर भी दो है, इसके नीचे भी दो है. सो ये 150 मिडिल हो गया, तो इसको अपन क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, एज्यूम करेंगे. सो लेट capital A is equals to 150. Capital A means assumed mean. Okay students, now अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है ना. कंप्लीट करने के लिए देखो A मेरे पास है, फ्रीक्वेंसी है, अब मेरे को UI चाहिए ना. UI का स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला होता है, UI क्या होता है, DI/H, है ना. तो आपको UI कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, so now students we have to find UI. so UI का जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है ना, UI का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट DI/H, DI/H. और DI को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है DI is equals to xi minus 0. पता है आपको DI का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डेविएशन. DI is called deviation and it is calculated by the difference of xi minus 0. So students, first we calculate here deviation DI, and DI का फॉर्मूला स्टूडेंट्स xi minus 3. Now here we find the DI difference. Difference is xi minus a. So इस xi की वैल्यू को आप a में से माइनस करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स क्या आपके पास 150 है. So 110 minus 150, 110 में से 150 को माइनस करना स्टूडेंट्स. So we get minus 140. Now second 130 is xi, a is again 150. So 130 minus 150. So 150 में से मतलब अगर 150 को माइनस करेंगे, so students यहाँ पर बेटा minus 40 स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स minus 20. Now next 150 is next xi, a is again 150. So 150 minus 150 is 0. Got it students? So आप देखिए जहां हमने assumed भी माना था उसके सामने आपका DI कैसा है 0. दैट मींस आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट 170, 170 minus 150, 170 minus 150 is 20. And next 190 minus 150, that is plus 40. And 0 से नीचे all the deviation are positive and below to the 0 all the deviations are negative. So this is the true condition of the question. Next we have to calculate UI. Students आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर UI. What is the formula of UI? UI is DI/H. अच्छा अगर मेरे को फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होता है तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन होता. अगर यहाँ पर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड करना होता तो UI कैलकुलेट करनी करना बस क्या करना होता, फिर FI into DI करना होता. ठीक है. So now UI is for DI/H और H आपका बेटा 20 है स्टूडेंट्स. So minus 40 upon 20, minus 40 upon minus 20, that is minus 2. ऊपर minus 40, नीचे 20, 22 का 40. So this स्टूडेंट्स कितना है minus 1. फिर आएगा next here is minus 20, minus 20 upon 20, that is minus 1. Next 0 upon 20 is 0. Next 20 upon 20 is 1. 40 upon 20 is plus. So this is a DY. What is my point, students? Any problem? Next, what we have to calculate in the next column? In the next, we have to calculate FI into UI.
Next we have to calculate fi into ui. fi में ui का बेटा मल्टीप्लाई देख लीजिए fi into ui का पूछिए. So बेटा f का बेटा here 12 ui here, so 12 to the 24 minus 24, 14 1 the 14 minus 14, 8 into 0 0, 6 1 the 6, 10 to the 20. Yeah students, now we have to find their sum, that is summation of fi il, ना summation of fi into il ui. So students, मैंने आपको इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताया था. आपको अगर आपके सम नंबर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव, देन हाउ टू ऐड. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड करना है. तो ये आ गया 4 + 4 8 2 + 1, ये -38 आ गया. पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड करना है, 26 आ गया. ओके, और इनको वापस क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको माइनस करना है. तो -38 + 26 स्टूडेंट्स कितना बचेगा आपके पास, -38 + 26 is -12. So answer is -2. Got it my point students? After that you have to rub this, इसको यहाँ से आप कर दोगे. Got it? क्या करना स्टूडेंट्स, माइनस वाले नंबर को एक साथ करना है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वालों को एक साथ प्लस करना है. आफ्टर दैट दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है. सो आपके पास समेशन ऑफ fi into ui हो जाएगा. Now we, that is x bar is equals to a. What is the value of a? Is 150 plus ब्रैकेट समेशन ऑफ fi into i, बस वैल्यू पुट करना है. समेशन ऑफ fi into ui कितना है टेबल से मेरे पास -12 आया है स्टूडेंट्स, अपॉन समेशन ऑफ fi. समेशन ऑफ fi अपन स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, क्या है बेटा 50 मल्टीप्लाइड बाय h. h की वैल्यू स्टूडेंट्स 20. गॉट इट स्टूडेंट्स, 20. सो आप करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, x bar is equals to 150 students plus minus minus and 12 to the 24 upon 5, 24 upon 5. Okay, what is my point students? Now 150 बेटा आपको डिवाइड करना है, 24 को 5 से डिवाइड करना है. 5 4 जा 20, 4 ना पॉइंट लगाएंगे 0, 20, 5 4 जा 20. Now students this is 4.4. 4.4. That means we have to calculate the difference of 150 and 4.4. So students, 150 means 150.0 and which is the 4.4. इनका डिफरेंस करेंगे, मतलब कहेंगे 10 10 minus 4 6 and 9 9 minus 4 5 4 1. So it means 150.6. This is our mean. And you know क्या यूनिट दिया हमने डेली वेजेस की, रुपीस में दिया है ना, क्योंकि ये एक्स आई नहीं सीखा है, ये रुपीस में है. सो यू हैव टू प्लेस द यूनिट हियर, रुपीस. सो मीन वेजेस है ना, मीन डेली वेजेस इज रुपीस 145.6 rupees. Got it my point students? Any problem? Please write in the comment section if you have any problem in this question. Now you can see this once again. Some students are facing problem in this divide. If we divide 24 by 5, 5 4 is 24.0, 5 8 is 40. So this is 4.8, 4.8. And after the subtraction, 10 minus 8 is 2, 9 minus 4 is 5. So it is 145.2. That means 145.20. Now students, see, this is question number 5 of this exercise. You can see that in the question the distribution is given as follows. Number of members are in the class interval 50 to 52, 53 to 55, 55 to 56 to 58, 59 to 61 and 60 to 63. And number of boxes are 15, 110, 131, 115 and 20. So students, you can see here that the class intervals are 50 to 50 and next class interval starts from 53 to 55. क्योंकि जब लास्ट हमारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस तरीके से थे स्टूडेंट्स, 0 से 2 क्लास इंटरवल, नेक्स्ट 2 to 4, दैट इज फिर नेक्स्ट 4 to 6. दैट मींस अगर हम इस क्लास इंटरवल इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल इसकी लोअर लिमिट से कोइंसाइड हो रही है ना. अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर कोइंसाइड टू ईच अदर ना. सो अगर इस तरीके से आपके क्लास इंटरवल होते हैं, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था अपने लास्ट, आज क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 भी आपकी बुक के अंदर सेम इसी तरह की क्लास इंटरवल आपके गिवन है ना. सो स्टूडेंट्स,
आपके ये क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम इस क्वेश्चंस में गिवन है कि अगर आप क्लास इंटरवल आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या गिवन है बेटा यहाँ पर 50 टू 52, 53 टू 55, नेक्स्ट 56 टू 58। सो आप देखेंगे यहाँ का जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि डिफरेंस है। और डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है ना, 53 माइनस 52 डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स 1 का है। सो इस तरीके के जो हमारे क्लास इंटरवल होते हैं ना, वेयर द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कोइंसाइड, सच टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स, exclusive class interval, and such type of class intervals are called inclusive class interval. Inclusive class interval. So first of all students, we have to convert these inclusive class interval to exclusive, क्योंकि हमने क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से करना सीखा स्टूडेंट। सो पहले हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, का बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स 1 का डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस, ये वाला साइज ऑफ क्लास इंटरवल की बात नहीं कर रहे, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कोइंसाइड होने चाहिए ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम ऐसे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, these limits must be coincide to each other students। so यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज 1। ठीक है, आप देखेंगे वन डिफरेंस स्टूडेंट्स एडजस्ट करना है। अब ये क्लास इंटरवल में हमेशा दो वैल्यू देते हैं, लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। यानी इस 1 को मेरे को दो पार्ट में एडजस्ट करना, तो 1 को अगर मेरे पास 1 रुपीस है और दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या करेंगे बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट 1/2 करेंगे, दैट इज 0.5 ना, 0.5 इसको देंगे, 0.5 इसको देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 0.5 यहां से माइनस करो तो इट बिकम्स 49.5। तो 50 में से अगर आपने 49.5 को माइनस किया एंड वो जो 0.5 आपने यहां से माइनस किया, इधर प्लस कर देंगे 50, इट बिकम्स 52.5। So first class interval becomes 49.5 to 52.5। अब सेम ऐसे नीचे को 53 वाला में से बेटा माइनस करना है, सो इट बिकम्स 52.5, इसमें आपको प्लस करना है, इट बिकम्स 55.5। नाउ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर कोइंसाइड। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 0.5 फर्स्ट लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में आपको प्लस करना है। दैट्स व्हाई दीस लिमिट्स मस्ट बी एक्सक्लूसिव class interval। Got it my point students? So let us make the table to do this question, to the solution of this question। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट अपन बनाते हैं बेटा क्लास इंटरवल के लिए ना, क्लास इंटरवल के लिए। सो वी राइट हियर नंबर ऑफ मैंगोज। सो स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव। So 50 to 52, 50 में से बेटा 0.5 माइनस किया स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 49.5। 52 में प्लस करेंगे, सो स्टूडेंट्स इट बिकम्स 52.5। गॉट इट, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट 53, इसमें से माइनस किया स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 52.5, इसमें प्लस किया स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 55.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 56 में से बेटा आपने माइनस किया, इट बिकम्स 55.5। 58 का हमने प्लस का, सो इट बिकम्स 58.5। नेक्स्ट इज सेट 59 टू 61। 59 में से आपने माइनस किया 58.5, 61 में से आपने प्लस किया 61.5। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स 60 टू 64। सो 62 में से माइनस किया 61.5 टू 64.5। ये लास्ट वाला आपके स्टूडेंट्स टोटल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? सो इस तरीके से बेटा आपके जो क्वेश्चंस के अंदर आपके इंक्लूसिव क्लास इंटरवल गिवन थे, विद द हेल्प ऑफ दीस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स यू आर कन्वर्टेड दीस क्लास इंटरवल्स इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। राजबाला जी अभी बताया ना हमने 0.5 क्यों लिया, क्योंकि डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 53 है ना, ये दोनों कोइंसाइड होने चाहिए 52 और 53 है ना, बोथ आर इक्वल। कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो 1 को आपको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक लोअर लिमिट वाला पार्ट, एक अपर लिमिट वाला, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 0.5, इसलिए अपन ने 0.5 लिया। गॉट इट? नेक्स्ट अब क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक,
Next, in the next column, we have to find class mark. Class mark, that is xi. तो xi का फॉर्मूला स्टूडेंट्स अब सेम प्रोसेस आपको करना, बस इसी क्वेश्चन में यही मेरे को एक्स्ट्रा आपको समझाना था। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही थी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब सेम प्रोसेस हमारा वही होगा बेटा, xi is lower limit plus upper limit divided by 2। तो आपको इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पॉइंट वाला में थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं स्टूडेंट्स। 49.5 अपॉन 50 प्लस इसको प्लस 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 1 4 प्लस 5 11 प्लस, so it becomes 102.0, that is 102। अब इसको दिया था स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 2 करना है, 2 5 से 10, नेक्स्ट 2 1 से 2, कितना है 51 आ गया, कितना है स्टूडेंट्स 51। सो लास्ट आंसर वाला इज फर्स्ट इज 51। अब चेक करो डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 49.5 और 52.5 में अगर आप डिफरेंस चेक करो, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है स्टूडेंट्स, यहां का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, बेटा 49 प्लस 3 करेंगे तो 52 आएगा, ठीक है ना, ऐसे 52 प्लस 3 करेंगे 55, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहां पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 आ रहा है। सो वी कैन राइट हियर h is equals to 3, size of class interval is 3। तो अगर size of class interval students यहाँ पर 3 है, so we can add the 3 in this class interval, 51 plus 3 is 54, 54 plus 3 is 57, 57 plus 3 is 60, 60 plus 3 is 63। तो बार-बार आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो। सो फर्स्ट कैलकुलेट कर लीजिए, फिर h चेक कर लीजिए, h क्या है, इस h की वैल्यू को ऐड करते चले जाइए। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज गिवन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, number of boxes, that is fi frequency 15, 110, 135, 150 and 25। now we have to add these frequencies, so students 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 carry 2, 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 1 8 plus 2 10, 1 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4, so this is 400। got it? so students आपके क्वेश्चन में भी आपको स्टूडेंट्स कितना दिया स्टूडेंट्स, 400 का ही दिया है ना, 400 का। so students this is sum of frequencies, that is summation of fi। now what we have to calculate, now here we have to assume the mean, capital A students, capital A क्या आएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल A कहां से आपको assume करना है, xi कॉलम से, ठीक है। और इसका क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको, है ना, आपको जो मिडिल टर्म है उसको लेना। स्टूडेंट्स आप देखिए मिडिल टर्म हमारा क्या रहा 57, तो कैपिटल A is 57। now what we have to calculate, division di is xi minus a students। so students first is 51, a is 57, 51 minus 57 is minus 6, 54 minus 57 is minus 3, 57 minus 57 is 0, 60 minus 57 is 3, 63 minus 57 is students next 63 minus 57, that is again 6। now in the next column what we have to calculate, in the next column we have to calculate ui, and what is students ui, ui is bi upon h, formula of ui bi upon h। आपको इस h से डिवाइड करना है, h is 3, तो minus 6 upon 3 is minus 2, minus 3 upon minus 3 is 1, 0 upon 3 is 0, 1 and 2। yes friends, now we have to calculate fi into ui, fi into ui, got it students? so fi into 15 2 are 30, 110 1 is 110, 135 is 0, 115 and 25 to the 15। now we have to find their sum। तो स्टूडेंट्स मैंने इसका तरीका बताया था, माइनस वालों को एक साइड रख दे, ये आ जाएगा माइनस का 140, पॉजिटिव वालों को एक साथ 5 + 0 5 1 और इनको आपस में कर दीजिए स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट, 165 minus 140 is 25। तो समेशन ऑफ fi into ai है 25। नाउ स्टूडेंट्स इसको आप कर दीजिए यहां से। now since mean using the stack division method here, a plus summation of fi ui upon summation of fi into h, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बस, इसके अंदर वैल्यू पुट करना, बस मेन काम है टेबल फॉर्म करने का। टेबल फॉर्म होगी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिए एंड यू विल गेट योर आंसर।
A is 57, summation of Fi Ui is 25, summation of Fi is 400 multiplied by H is 3. स्टूडेंट्स 25 से डिवाइड हो जाएगा ना 25 1 जा 25 15 25 6 जा 150 तो आप लिखेंगे 400 को 25 से करेंगे स्टूडेंट 25 125 5 1 नेक्स्ट 25 6 जा 150 16 स्टूडेंट्स ऊपर 1 सो x bar is equal to 57 plus 3 1 3 3 upon 16 तो स्टूडेंट्स आप देखिए 3 से आपका 16 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता तो आप 3 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे सो यू हैव टू प्लेस पॉइंट हियर 0 है ना 30 सो 16 to the 30 16 with the 16 स्टूडेंट्स 10 minus 6 4 2 minus 1 1 0 ठीक है स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट इज 16 का टेबल आप बेटा 150 में है ना